In the name of Allah, the most kind, merciful and loving. Assalamu alaikum class. Welcome to online class again. Hope you all will be fine. This is our lecture number 19 of English. The topics we shall discuss in this lecture are from English A, we shall start chapter number 7, Clever Mirchu, and we shall do translation of paragraph 1, 2, 3 and 4. And then from English B, we shall continue present indefinite tense and we shall do exercise 3, 4 and 5. First of all, we shall do translation of chapter number 7, Clever Mirchu. And here are the meanings of paragraph number 1. You have to write them on your book. Woodcutter, लकड़हारा, wife, बीवी, lived, रहते थे, poor, गरीब, food, खुराक, always, हमेशा, hungry, भूख. Now this is the paragraph number 1. A woodcutter and his wife lived in a village. They had 7 children. All of them were boys. The woodcutter and his wife were so poor that at times they did not know where to get money to buy food for their children. The children were growing so fast that they always felt hungry. Now translation, a woodcutter, एक लकड़हारा and और his उसकी wife बीवी lived रहते थे in में a एक village गांव. एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे. They had उनके थे 7 children, 7 बच्चे. उनके 7 बच्चे थे. All of them सभी were boys, लड़के थे. उनके 7 बच्चे थे और सभी लड़के थे. The woodcutter लकड़हारा and और his उसकी wife बीवी were so poor इतने गरीब थे that के at times कभी कभार they उन्हें did not know ये नहीं पता होता था. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे कि कभी कभार उन्हें ये पता नहीं होता था where कहाँ to get से लाएं मनी रकम to buy खरीदने food खुराक for के लिए their अपने children बच्चों अपने बच्चों की खुराक खरीदने के लिए रकम कहाँ से लाएं. The children बच्चे were growing बड़े हो रहे थे so fast इतनी तेजी से that के they वो always हमेशा felt hungry भूख महसूस करते. बच्चे इतनी तेजी से बड़े हो रहे थे कि वो हमेशा भूख महसूस करते. Now these are the meanings of paragraph number 2. Youngest सबसे छोटा, caused वजह, utmost सबसे ज्यादा, anxiety परेशानी, because क्योंकि, indeed दरअसल, pepper मिर्च, named नाम रखा गया. Now second paragraph. The youngest son, however, was the one who caused his parents the utmost anxiety. It is true that he did not eat much, but this was because he was so small. Indeed, when he was born, he was only the size of a pepper, and that was why he was named Mirchu. Now translation, the youngest, सबसे छोटा, son, लड़का, however, ताहम, was the one, वो था, who, जो, caused, वजह था, his, अपने, parents, वालदैन, the utmost, सबसे ज्यादा, anxiety, परेशानी. ताहम सबसे छोटा लड़का वो था जो अपने वालदैन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की वजह था. It ये is true सच है that के he वो did not eat नहीं खाता था much ज्यादा. ये सच है कि वो ज्यादा नहीं खाता था. But मगर this was ऐसा इसलिए था because क्योंकि he वो was so small बहुत ही छोटा था. मगर ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था. Indeed दरअसल when जब he वो was born पैदा हुआ था he वो was था only सिर्फ
द साइज ऑफ पेपर, मिर्च की जिसामत जितना। दरअसल जब वो पैदा हुआ था वो सिर्फ एक मिर्च की जिसामत जितना था। एंड और दैट वाज वाई, यही वजह थी, ही उसका was named नाम रखा गया मिर्चू मिर्चू, यही वजह थी कि उसका नाम मिर्चू रखा गया। नाउ पैराग्राफ नंबर 3 मीनिंग्स। वंस एक मर्तबा, हैपेंड हुआ, फैमिन कहत, स्प्रेड फैलना, लैंड जमीन, सून जल्द ही, फैमिली खानदान। Now, third paragraph. Once it happened that there was no rain for months on end, a great famine spread across the land, and the woodcutter soon had nothing to give to his family. All the savings were gone, and there was nothing left to eat. Now, translation. Once एक मर्तबा, it ऐसा happened हुआ, that के there was no rain, बारिश ना हुई, for months on end, कई महीने। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कई महीने बारिश ना हुई। अ ग्रेट एक बड़ा, फैमिन कहत, स्प्रेड फैल गया, अक्रॉस द लैंड सारी जमीन पर एक बड़ा कहत फैल गया। एंड और द वुड कटर लकड़हारा, सून जल्द ही, हैड नथिंग के पास कुछ न था, टू गिव देने के लिए, टू हिज फैमिली अपने खानदान को, और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने खानदान को देने के लिए कुछ ना था। ऑल द सेविंग्स सारी जमा पूंजी, वर गॉन खत्म हो गई, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, एंड और देयर वॉज नथिंग कुछ ना था, लेफ्ट बचा, टू ईट खाने के लिए। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और खाने के लिए कुछ ना बचा। नाउ पैराग्राफ नंबर 4 मीनिंग्स। फीड खिलाना, बिसाइड के पास, एम्प्टी खाली, हर्थ चूल्हा, ब्रेकफास्ट नाश्ता, डियर प्यारी, फॉरेस्ट जंगल, रिच अमीर। Now paragraph number 4. We can no longer feed our children, the woodcutter told his wife one night as they sat beside the empty hearth. When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. My dear, there is only one thing that we can do. We must take them into the forest and leave them there. Maybe some rich man finds them and takes them home. I am sure that he'll take better care of them. Now translation. वही हम कैन फीड खिला सकते, नो लॉन्गर मजीद नहीं, और अपने चिल्ड्रन बच्चों को, हम अपने बच्चों को मजीद नहीं खिला सकते। द वुड कटर लकड़हारे टोल्ड ने कहा, हिज वाइफ अपनी बीवी से, वन नाइट एक रात, लकड़हारे ने एक रात अपनी बीवी से कहा, एज जब, दे सेट वो बैठे थे, बिसाइड के साथ, द एम्प्टी खाली, हर्थ चूल्हे जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे थे, व्हेन जब, द बॉयज लड़के गेट अप जागते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह, फॉर के लिए, देयर ब्रेकफास्ट नाश्ते, देयर इज नथिंग कुछ नहीं होता, फॉर देम उनके, टू ईट खाने के लिए। जब लड़के सुबह नाश्ते के लिए जागते हैं तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता। माई डियर मेरी प्यारी, देयर इज ओनली वन थिंग सिर्फ एक काम है, दैट जो, वी हम, कैन डू कर सकते हैं, सिर्फ मेरी प्यारी सिर्फ एक काम है जो हम कर सकते हैं, वी हम, मस्ट चाहिए, टेक देम इन्हें ले जाना, इन टू में, द फॉरेस्ट जंगल, एंड और लीव छोड़ आए, देम इन्हें, देयर वहीं, हमें इन्हें जंगल में ले जाना चाहिए और उन्हें वहीं छोड़ आए। मे भी हो सकता है, सम कोई, रिच अमीर मैन आदमी, फाइंड्स देम इन्हें पाले, एंड और टेक्स देम होम इन्हें घर ले जाए। हो सकता है कोई अमीर आदमी इन्हें पाले और इन्हें घर ले जाए। आई एम श्योर मुझे यकीन है, डैट के ही वो, विल टेक करेगा, बेटर बेहतर, केयर देखभाल, ऑफ देम उनकी, मुझे यकीन है कि वो उनकी बेहतर देखभाल करेगा।
Now we shall do present indefinite tense exercise number 3. And this exercise is related to negative sentences, and the method of negative sentence is, first of all we shall write subject, then doodles, then not, then first form, and at the end we shall write object. And the first sentence is, वो गुनाह पर नहीं पछताता है, he does not repent on sin. आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, you do not admit your mistake. गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं, uninteresting books are not sold like hot cakes. सितारे दिन में नहीं चमकते हैं, stars do not shine in the day. वो मेरी बात नहीं सुनता है, he does not listen to me. मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ, I do not recognize this stranger. हम आपको नहीं जानते हैं, we do not know you. सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, all the boys do not make mischief. दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है, a wise man does not commit such a mistake. सूरज जमीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता है, the sun does not revolve around the earth. चांद आजकल शाम को नमोदार नहीं होता है, मून डज नॉट अपीयर इन द इवनिंग नाउअडेज. लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, द वुड डज नॉट सिंक इन वाटर. लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है, अ पीस ऑफ आयरन डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर. अकबर कुछ जमा नहीं करता है, अकबर सेव्स नथिंग. हम किसी को ख्वामोख्वाह तंग नहीं करते हैं, we do not tease anybody for nothing. Now we shall do present indefinite tense exercise number 4. And this exercise is related to double interrogative sentences. And the method will be, first of all we shall write interrogative pronoun if any, then doodles, then subject, then first form, then object, and at the end question mark. This exercise is of interrogative sentences. The first one is, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं? Where do the children play hide and seek? डाकिया इस गली में कब आता है? When does the postman come to this street? तुम उसके यहाँ कयाम पर क्यों एतराज करते हो? Why do you insist on his stay over here? क्या बादल जोर से गरजता है? Does the cloud thunder loudly? क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? Does it hail in the summer? वो अपनी आमदन से ज्यादा क्यों खर्च करता है? Why does he spend more than his income? क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है? Does he feel ashamed of what he did? क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है? Does Bashir wander till late at night? नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है? How long does नसीमा stay with her uncle? फौज कहाँ पड़ाव करती है? Where does the army encamp? क्या तुम मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हो? Do you prefer fruit to sweets? क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? Do the people consider time important? ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? Why do these students waste time? मुर्गा कब अजान देता है? When does the cock crow? क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? Does your daughter respect the elders? Now we shall start present indefinite tense exercise number 5. क्या वो लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? Does he demand reasonable price for the fox? कपड़े का ताजर कम नाप क्यों देता है? Why does the cloth merchant give short measure? क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं? Do all the students collect postage stamps? क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? Does the rich man burn the candle at both ends? तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? Why do you insist on buying cycle?
क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? डज दिस गर्ल स्लीप लेट एट नाइट? परिंदे कब चहचहाते हैं? व्हेन डू द बर्ड्स चिर्प? उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं? व्हाई डू पीपल सिंग एंड डांस ऑन उर्स? आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? व्हाट टाइप ऑफ ड्रीम्स डू यू सी? क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? डू दे नॉट केयर फॉर एनीवन? तुम तर्जमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? Why do you not show me the exercises of translation? क्या वो अपनी गलती मानता है? Does he admit his mistake? क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? Does this class टेक इंटरेस्ट इन इट्स वर्क? क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? डज इट रेन इन पाकिस्तान ओनली इन द समर सीजन? पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? इन विच सीजन डज इट स्नो ऑन द माउंटेन्स? नाउ दिस इज योर होम टास्क. I hope that you have understood all the topics we have discussed in this lecture. Now it's time to end our lecture here. Take care. Thanks for watching. Allah Hafiz.